So today we are going to continue with the first topic, which is last week lecture, we studied the theory part of this topic, and then we derived some equations of a particle which is traveling in a straight line. The first three equations were general kinematic equations, whereas the last three equations which we derived last time were meant for constant acceleration case. So depending upon the function which is being given to you, अगर आपको constant acceleration का case given नहीं भी होता, specifically wording written नहीं होती question में, even then based upon that function आप judge कर सकते हैं कि is it a case of constant acceleration or not. So if it is a case of constant acceleration, you can directly use equation 4, 5 and 6. However, if it is not, then you have to use general kinematic equations 1, 2 and 3 for the solution of that problem. आज हम इसी टॉपिक से रेलिवेंट एक एक्सरसाइज, एक प्रॉब्लम, एक एग्जांपल और एक एक्सरसाइज का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, और इंशाल्लाह जो हमारी कल सुबह की क्लास है उसमें हम फिर ये नेक्स्ट टॉपिक इरेटिक मोशन का न सिर्फ स्टार्ट करेंगे बल्कि ख़त्म भी करेंगे, क्योंकि छोटा सा टॉपिक है, एक तरह से वो कॉन्टिन्यूस मोशन की ही एक्सटेंशन है जिसको हम मुख्तलिफ फेजेस में जो है वो अप्लाई कर रहे होंगे. Okay, so starting with today's lecture, this is the slide which was shared to you in the last lecture as well. We solved example 12.1 in the previous lecture, जिसमें हमने किया क्या था कि एक कार थी जिसका velocity time function आपको known था, and you were asked to determine the displacement time curve and acceleration time curve in example 12-1. तो उसमें हमने उस velocity time function को एक दफ़ा differentiate करके acceleration time function बना लिया था, एक दफ़ा इंटीग्रेट करके हमने st फंक्शन बना लिया था, और फिर हमने s और a की वैल्यू उस पर्टिकुलर टाइम पे जो है वो फाइंड कर ली थी. ओके, आज हम एग्जांपल 12-3 करेंगे और इसके अलावा एक्सरसाइज का एक प्रॉब्लम करेंगे. नाउ बिफोर मूविंग ऑन टू एग्जांपल 12-3, लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था कि व्हेनेवर यू आर डिस्कसिंग अ केस ऑफ फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट, नाउ सिंस थ्रूआउट द मोशन that particular object or that particular particle is under constant downward acceleration due to gravity, therefore we can apply those constant acceleration equations on that particle, which is basically a free falling particle, या projectile motion वाले तमाम cases पे भी हम वही constant acceleration equations जो है वो apply कर सकते हैं. So starting with today's example, which is 12-3. During a test, a rocket is traveling upward at a speed of 75 meters per second, and when it is 40 meters from the ground, engine fails. So आपके पास इस केस में हो क्या रहा है कि a rocket is traveling at a speed of 75 meters per second when it is at point A, and this point A is basically 40 meters above the ground. Now this rocket is traveling under the action of its engine power. के engine power के action में ये travel कर रहे हैं upward. Point A के ऊपर आके क्या होता है कि इसके engine जो है वो fail हो जाते हैं. So when it is at point A, its engine fails. So because of its inertia, ये किसी maximum height तक जाएगा, and once it has attained that maximum height, उसके बाद फिर ये दोबारा नीचे की तरफ आके ground को hit करेगा. So you need to determine the maximum height reached by the rocket. So if I take that maximum height point as point B, so I need to determine कि कितने maximum height तक ये rocket जो है it is going to rise. और उसके बाद जो दूसरी चीज़ इसमें find करनी है, we need to find कि what is the velocity of this rocket just before it hits the ground. That is, once it travels back to point C जो कि आपका ground वाला point है, point C तक पहुँचते पहुँचते what is going to be the velocity of this rocket, or in other words, with which velocity this rocket is going to hit the ground. Once it hits the ground, उसके बाद तो फिर सारा दायरा मोशन खत्म हो गया, velocity भी जीरो हो गई और बाकी चीजें भी जीरो हो गई. But you need to determine the velocity of this rocket just before hitting the ground. These are the two things which we need to determine: the maximum height as well as the velocity with which it hits the ground. While in motion, this rocket is subjected to a constant downward acceleration due to gravity. Neglect the effect of air resistance. So we can consider it as a free falling object from point A to point B, and then from point B to point C as well.
इससे पहले कि हम इस चीज़ का सलूशन करें, इफ़ यू रिमेंबर हमने जो लास्ट एग्जांपल की थी, द कार वाज ट्रेवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन मोशन, उसमें आप जब भी ये काइनेमेटिक इक्वेशंस अप्लाई कर रहे हो, वेदर दे आर जनरल काइनेमेटिक इक्वेशन और इक्वेशंस ऑफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, आप काइंडली अपनी एक्सिस कन्वेंशन और इक्वेशंस के साथ लाजमी डिफाइन किया करें। वजह क्या है कि ज़रूरी नहीं है कि आप हर दफ़ा कन्वेंशनल एक्सिस भी इस्तेमाल करें, मसलन पॉजिटिव टुवर्ड्स द राइट लें या पॉजिटिव अपवर्ड लें। हो सकता है आप अपने डेटा के हिसाब से पॉजिटिव डाउनवर्ड ले रहे हो या पॉजिटिव टुवर्ड्स द लेफ्ट ले रहे हो, तो हर दफ़ा जब आप इक्वेशंस अप्लाई करें, वेदर दे आर द जनरल काइनेमेटिक इक्वेशन और इक्वेशन ऑफ कांस्टेंट एक्सप्रेशन, काइंडली उन एक्सिस की कन्वेंशन जो है वो साथ साथ डिफाइन कर दिया करें। जो लोग यहाँ मौजूद हैं उनसे मेरा एक छोटा सा सवाल है बिफोर मूविंग ऑन टू द सोल्यूशन। सपोज मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन मोशन होता जो कि सिंपल स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो है वो ट्रेवल कर रहा था। मैं आपसे कहता कि एक पार्टिकल जो है दैट इज लोकेटेड एट दिस पोजीशन कोऑर्डिनेट एंड एट दिस पॉइंट इट इज म्यूट कर दें, अदरवाइज मैं यहाँ से तमाम लोगों को म्यूट कर देता हूँ। म्यूट हो गया ऑलरेडी ऑटोमेटिक। and this particle is having a deceleration, जब मैं deceleration कहूँ तो acceleration is towards this axis because I am taking towards the meters per second square. So a particle is traveling towards the right side, but it is decelerating at a rate of -2 meters per second square. जब आप कांस्टेंट एक्सेलरेशन इक्वेशन अप्लाई करते सपोज इस पे, तो ए की वैल्यू क्या डालते आप? पॉजिटिव 2 डालते हैं, नेगेटिव 2 डालते हैं? Positive 2. Because I am taking positive axis towards the right, and since this acceleration is directed towards the negative axis, so जब आप वैल्यू पुट कर रहे होते ए की तो आप नेगेटिव वैल्यू डाल लेते। अब चूंकि हम वेक्टर्स के बजाय यहाँ एल्जेब्राइक स्केलर इस टॉपिक में इस्तेमाल करें, क्योंकि सिंगल एक्सिस है, जब नेक्स्ट में 2 एक्सिस आएंगी तो फिर तो वेक्टर्स वाली कहानी आ जाएगी, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव में भी उसका भी मैटर करेंगे, लेकिन इस वक्त ज़्यादा मैटर इसलिए कर रहे हैं कि आप यूनिट वेक्टर्स वगैरह इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, आप इनको साइंस से ही डिस्टिंग्विश कर रहे हैं। सो आपने एक डायरेक्शन बता दिया कि यू आर टेकिंग पॉजिटिव एक्सिस टुवर्ड्स द राइट, जो जो चीजें इस पॉजिटिव एक्सिस की तरफ आ रही होंगी दे आर गोइंग टू बी टेकन एज पॉजिटिव, जो जो चीजें नेगेटिव एक्सिस की तरफ आ रही होंगी दे आर गोइंग टू बी टेकन एज नेगेटिव। तो इस चीज को जहन में रखते हुए अब थोड़ा सा हम इस अपने एग्जाम्पल 12-3 के सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। Okay, now you need to determine first of all the maximum height attained by this rocket, that is once it reaches point B, किस position coordinate पे lie करता है। It means that you are going to apply those constant acceleration equations, किन दो पॉइंट के दरमियान आप अप्लाई करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वेशंस को? एनी वन वॉलंटियर जो यहाँ मौजूद हैं? जी अब्दुल्ला। ए और बी के दरमियान अप्लाई करेंगे। सो वी आर गोइंग टू अप्लाई वन ऑफ दोस कांस्टेंट एक्सेलरेशन इक्वेशंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जो सेकंड स्टूडेंट है, हम कौन सी कांस्टेंट एक्सेलरेशन इक्वेशन को यहाँ अप्लाई करेंगे बिटवीन पॉइंट ए एंड बी इन ऑर्डर टू फाइंड आउट दैट मैक्सिमम हाइट एस बी? सेकंड स्टूडेंट प्लीज। क्यों आपने ये इक्वेशन सेलेक्ट की? बेसिकली आपके पास इस पूरी प्रॉब्लम में कहीं भी टाइम का वेरिएबल जो है वो इन्वॉल्व नहीं है। बाकी दोनों इक्वेशन जो हैं दे इन्वॉल्व द टाइम वेरिएबल, इन टी उसमें आ रहा होता है। सिर्फ ये वो इक्वेशन है जो ए डी एस इक्वल टू वी डी वी से डिराइव हुई है। तो यहाँ इसमें चूंकि टाइम वेरिएबल इस प्रॉब्लम में इन्वॉल्व नहीं है, देयरफॉर यू आर गोइंग टू अप्लाई इक्वेशन वी स्क्वायर इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर प्लस 2as या 2ac(s minus s naught). So starting with the solution, I am going to consider the motion of this rocket from point A to point B
and I'm going to apply one of those constant acceleration equations, v square is equal to v naught square plus 2ac s minus s naught on this projectile motion. But since I am applying it between points a and b, तो b मेरा फाइनल पॉइंट हो गया, a मेरा इनिशियल पॉइंट है, तो मैंने अपनी ये जो वेलोसिटी की और s की जो एब्रीविएशन है उनको उसी हिसाब से मॉडिफाई कर लिए. दैट इक्वेशन वुड बिकम vb स्क्वायर इक्वल टू va स्क्वायर प्लस 2ac sb माइनस sa. एक चीज जो मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ जिसका आपने ख्याल रखना है सोल्यूशन के वक्त, कि आई एम डिफाइनिंग द पॉजिटिव एक्सिस इन दिस केस टू बी द एक्सिस व्हिच इज डायरेक्टेड अपवर्ड. सो अपवर्ड को मैं पॉजिटिव डायरेक्शन के तौर पे स्पेसिफाई कर रहा हूँ. इट मींस के वो तमाम चीजें जो पॉजिटिव यानी अपवर्ड आ रही हैं उनको मैं पॉजिटिव साइन से रिप्रेजेंट करूंगा. वो तमाम चीजें जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में इस प्रॉब्लम में आएंगी उनको मैं नेगेटिव साइन के साथ रिप्रेजेंट करूंगा. अब थोड़ा सा यहाँ गौर से देखें. व्हेन दिस रॉकेट is at the initial point, which is point A, it has a velocity of 75 meter per second. So VA की वैल्यू मैंने 75 जो है वो इस इक्वेशन में पुट कर ली है. जहां तक ताल्लुक इस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का है, सिंस आई एम डिफाइनिंग पॉजिटिव एक्सिस अपवर्ड एंड द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज टुवर्ड्स द ग्राउंड. हमेशा आपकी AG यानी G की जो वैल्यू है दैट इज टुवर्ड्स द ग्राउंड. So upward आप डिफाइन करें पॉजिटिव एक्सिस, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड है, तो व्हाट शुड बी द साइन ऑफ दिस G. अब जरा सोचें ना, ये जो आपको मैंने एग्जांपल दी थी कि पार्टिकल 3 मीटर पर सेकंड के साथ पॉजिटिव साइड पे ट्रेवल कर रहे हैं बट इट इज डिसेलरेटिंग एट -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. अगर आप इस पे वही इक्वेशन अप्लाई करते तो ये क्या हो जाता है, 3 स्क्वायर विच इज द इनिशियल वेलोसिटी प्लस 2 इंटू -2 इंटू डेल्टा एस. ठीक है. तो थोड़ा सा जब आप वर्टिकल की बात आती है तो आप घबराते हैं कि वेलोसिटी इस तरह नहीं, वेक्टर्स की फॉर्म में जब आप बात कर रहे हैं तो वो तमाम वेक्टर्स दैट आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव साइड शुड बी रिप्रेजेंटेड विद अ पॉजिटिव साइन. वो तमाम वैल्यूज, वो तमाम क्वांटिटीज व्हिच आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द नेगेटिव साइड शुड बी रिप्रेजेंटेड विद अ नेगेटिव साइन. तो कमिंग बैक टू दिस इक्वेशन, आपने G की वैल्यू जो है वो यहाँ नेगेटिव साइन के साथ इंक्लूड कर दी. SB minus SA, since it is already given to you that it is at a position coordinate of 40 meters once the engine fails at point A. So SA की वैल्यू आपने 40 पुट की. Once you solve it, the value of SB comes out to be 327 meter. लेकिन इस केस में what is going to be the value of this VB? Why 0? Because once the rocket has attained its maximum height, momentarily ये नहीं होगा कि 0 पे वो रुक जाएगा, नहीं, momentarily that velocity is going to be 0 and then this rocket is going to travel back towards the ground. So momentarily जब उसकी वैल्यू 0 हो रही है तो we are taking basically that point जिस पे वो maximum height attain कर चुका है. यही वजह है कि हमने VB की वैल्यू जो है वो 0 पुट की है. So putting all these values will give you the value of maximum height to be equal to 327 meter. It means कि engine fail होने के बाद this rocket is going to attain a maximum position coordinate of 327 meter before coming down again. यहाँ तक क्लियर है एक को या कोई क्यूरी है किसी की? चलें बाकी सेकंड पोर्शन भी सॉल्व करते हैं, उसके बाद एक ही दफ़ा आपकी क्यूरीज को जो है वो डिस्कस करेंगे. ओके, नाउ इन द सेकंड पार्ट वी नीड टू फाइंड आउट द वेलोसिटी विद व्हिच दिस रॉकेट विल हिट द ग्राउंड अगेन. सो अगेन टाइम वेरिएबल इन्वॉल्व नहीं है, सो इक्वेशन आपने यही वाली अप्लाई करनी है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाली. However, now you are going to apply this equation between points B and point C. The initial point would now become point B. The final point would now become point C. एक चीज का जो आपने ख्याल रखना है वो क्या है कि बीच क्वेश्चन के आपने कोशिश करनी है कि साइन कन्वेंशन चेंज ना करें. अगर पहले पार्ट में आपने पॉजिटिव अपवर्ड डिफाइन किया है तो सेकंड पार्ट में भी पॉजिटिव अपवर्ड ही डिफाइन करें. ये ना हो कि सेकंड पार्ट के लिए आप पॉजिटिव डाउनवर्ड कर दें और फिर ज्यादा कंफ्यूज हो जाए कि किसके साथ मैंने पॉजिटिव लगाना है किसके साथ नेगेटिव लगाना है. तो हमेशा गलती से बचने का आसान तरीका क्या है कि एक दफा साइन कन्वेंशन डिफाइन कर लें जो पूरे क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई होती है. सो आई एम टेकिंग द सेम साइन कन्वेंशन दैट इज पॉजिटिव अपवर्ड in second part as well, and I am applying the same equation between points B to point C. So it would become VC square equal to VB square plus 2AC SC minus SB. The velocity at point B is again taken as 0 because I am considering the point of maximum height at which momentarily this velocity is equal to 0. जहां तक ताल्लुक acceleration due to gravity का है, again
एक्सिस कन्वेंशन वही है कि आई एम टेकिंग पॉजिटिव एक्सिस अपवर्ड, सो सिंस when the rocket is moving downward or upward, in both cases g is directed towards the ground, which is the negative axis. So that's why I am again taking the sign convention of g to be equal to minus 9.8 meter per second square. जहां तक ताल्लुक sc का हो गया, so since point c represents any point on the ground, so sc आपके पास 0 हो गया पोजीशन कोऑर्डिनेट, sb आप पिछले स्टेप में फॉलो कर चुके थे 320 सॉल्व इट, आपके पास ये नेगेटिव नेगेटिव एक पॉजिटिव चीज बन जाएगी. इट मींस के vc स्क्वायर शुड बी इक्वल टू सम पॉजिटिव वैल्यू. जब आप अंडर रूट लेंगे तो कितने रूट्स पॉसिबल हैं? 2 रूट्स पॉसिबल हैं, पॉजिटिव साइन और नेगेटिव साइन के साथ. विच रूट यू आर गोइंग टू सिलेक्ट? नेगेटिव. व्हाई? बिकॉज आई एम टेकिंग पॉजिटिव एक्सिस अपवर्ड and once the rocket is traveling downward it would have a velocity in the downward direction. That's why I am choosing the negative route. So this is the velocity with which this rocket is going to hit the ground, which is 80.1 meter per second. Magnitude उसका 80.1 है. Negative sign सिर्फ उसके direction के लिए है कि I am taking positive axis upward, so this velocity is going to be in the downward direction. अच्छा, अब alternate तरीका क्या हो सकता था जो मेरे ख्याल में आप शायद इस्तेमाल करते भी रहे हैं पैरामेट्रिक की फिजिक्स वगैरह में. अभी एनर्जी कन्वर्जन छोड़ दें, अभी हम सिर्फ कांस्टेंट एक्सेलरेशन इक्वेशन की बात कर रहे हैं. आप ये भी कर सकते थे कि सेकंड पार्ट में अपनी साइन कन्वेंशन को चेंज करना चाहते तो कर सकते थे, यानी आप पॉजिटिव डाउनवर्ड ले सकते थे. उसका नुकसान या फायदा क्या होता कि आपका फिर ये 9.8 जो है वो पॉजिटिव हो जाता, लेकिन फिर आपको करना क्या पड़ता कि आप इसको रेफरेंस बना लेते. ठीक है, ये आपका रेफरेंस हो जाता और आप 327 जो है वो SC 327 माइनस 0 ले लेते, तो अगेन आपके पास पॉजिटिव आना था और फिर आप पॉजिटिव रूट ही सेलेक्ट कर सकते थे बिकॉज आपने डाउनवर्ड जो है पॉजिटिव लिया. वेलोसिटी भी 80.1 आपकी पॉजिटिव ही हो सकती थी. लेकिन आपको जो मैं बार बार समझा रहा हूँ, जब भी आप वेक्टर्स और आगे चूंकि हमारे वेक्टर्स ही इन्वॉल्व हैं, वेक्टर्स वगैरह के केस में कोशिश करें कि स्टार्ट ऑफ द क्वेश्चन एक साइन कन्वेंशन डिफाइन कर लें, फिर उसी साइन कन्वेंशन को फॉलो करें. उससे आपकी गलती के चांसेस जो है वो कम से कम हो जाते हैं. अगर मैं पहले पार्ट में देखूं तो थोड़ा सा देखें, वेलोसिटी आपके पास 75 है, एक्सेलरेशन आपके पास 9.81 है. मतलब क्या है इसका? वेलोसिटी पॉजिटिव, एक्सेलरेशन नेगेटिव. द पार्टिकल इज डिसेलरेटिंग फ्रॉम पॉइंट ए टिल पॉइंट बी व्हेन इट रीचेस इट्स मैक्सिमम हाइट. दूसरे केस में आपके पास वेलोसिटी भी नेगेटिव है, acceleration भी negative है. It means that from point B to point C this particle is actually accelerating. That's why आपके पास 0 मीटर पर सेकंड के साथ 80.1 मीटर पर सेकंड की velocity में increase आ रही है. Is it clear to all of you? Now if you have any question, any query regarding this example, you may ask now. जो यहाँ मौजूद है पहले वो कोई क्यूरी हो तो कर लें, उसके बाद फिर मैं जो ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं उनसे भी बात करता हूँ. Okay, those who are attending online, if you have any question regarding this example, you may ask now. You may raise your hand ताकि मैं आपका माइक अगर अनम्यूट की ज़रूरत हो तो मैं कर सकता हूँ. अगर कोई क्वेश्चन नहीं है, so we can move on to the next question, which is going to be the last question for today's lecture. आज हमने सिर्फ ये एक एग्जाम्पल और एक प्रॉब्लम करनी थी. दूसरा प्रॉब्लम थोड़ा सा लेंथी है, तो इट वुड टेक अराउंड 15 to 20 मिनट्स और इतनी में तकरीबन क्लास का टाइम जो है वो खत्म हो जाएगा. ओके, नो क्वेश्चन फ्रॉम दोज हु आर अटेंडिंग ऑनलाइन. ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम ऑफ दिस टॉपिक. थोड़ा सा इस प्रॉब्लम को गौर से देखें, इसमें आपसे काफ़ी डिस्कशन रहेगी. वी हैव अ पार्टिकल इन दिस प्रॉब्लम विच इज ट्रेवलिंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन and its displacement function with respect to time is given to you, that is s equal to 1.5 t cube minus 13.5 t square plus 22.5. so ये s as a function of time आपको इस particle के लिए known है. You need to determine two things in this case. The first one is कि 6 सेकंड के बाद what should be the position of this particle, ये किस पोजीशन कोऑर्डिनेट पे 6 सेकंड के बाद लाई करते हैं. द सेकंड थिंग व्हिच यू नीड टू कैलकुलेट इज द टोटल डिस्टेंस व्हिच दिस पार्टिकल हैज ट्रेवल्ड ड्यूरिंग दिस 6 सेकंड टाइम इंटरवल. सो दो चीजें आपने फाइंड करनी है. वन इज द पोजीशन
The other one is the distance traveled by this particle. Okay, सबसे पहले हम position की बात कर लेते हैं. How you are going to find the position of this particle after t equal to 6 seconds? Anyone volunteer? The first student which is sitting on that bench. Question ये है कि how we are going to find out the position of this particle at the end of t equal to 6 second time interval. It's very simple. पहला पार्ट सिंपल है जिसमें आपने सिंपली इस s में t की वैल्यू पुट कर दी एंड you get the position of this particle after t equal to 6 seconds, which is minus 27.4. It means के 6 सेकंड के बाद this particle is located at a position coordinate of minus 27 feet. ठीक है? Okay, now in order to find out the distance traveled, थोड़ा सा हम इस क्वेश्चन को चेंज करते हैं ताकि आपको बेहतर तरीके से ये चीज समझ आए. इसका वेलोसिटी फंक्शन आप निकाल सकते हैं, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम. वेलोसिटी फंक्शन के लिए हम करते क्या हैं कि वी आर गोइंग टू डिफरेंशिएट दिस s with respect to time once in order to find out the velocity function. So once we differentiate it, the velocity function comes out to be 4.5 t square minus 27t plus 22.5 feet per second. Simply हमने with respect to time उस s को एक दफा डिफरेंशिएट कर दिए. आई होप के यहां तक भी किसी को कोई डाउट नहीं होगा. सिंपल डिफरेंशिएशन है. फंक्शन ऑफ एक दफा डिफरेंशिएट किया, वी गॉट v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम. अब थोड़ा सा चेंज हम इस क्वेश्चन को करते हैं और उसके बाद पहले हम उस चेंज के हवाले से सोल्यूशन देखेंगे और फिर हम ओरिजिनल उस पर वापस आएंगे. ओके, व्हाट अबाउट अगर मैं आपसे कहता कि आपके पास ये जो s वाला फंक्शन 0.5 t स्क्वायर, इसको मैं नेगेटिव के बजाय सपोज मैं इसको पॉजिटिव साइन के तौर पे कंसीडर कर लेता. ठीक है, कि आपको जो फंक्शन के बनता है वो 1.5 t क्यूब प्लस 13.5 t स्क्वायर प्लस 22.5 t था. इसको पॉजिटिव करने से मेरे वेलोसिटी के फंक्शन में भी कोई चेंज आनी थी क्या? मेरे पास ये 27 t के साथ प्लस साइन आ जाता. चले मैंने इस 27 t के साथ भी प्लस साइन लगा लिया. अब जरा वेलोसिटी फंक्शन को गौर से देखें. इट इज 4.5 t स्क्वायर प्लस 27t प्लस 22.5. इट मींस कि t की मैं कोई भी वैल्यू डालूं, वेलोसिटी इज गोइंग टू बी पॉजिटिव. इन अदर वर्ड्स, थ्रू आउट दैट 6 second time duration, the particle would be traveling only towards one side of this axis, which is the positive side. So for that particular case, आपका s और st एक दूसरे से क्या डिफरेंट होंगे? If a particle is traveling throughout its motion towards the positive side of the axis, positive velocity तो ये कहती है ना कि the particle is traveling towards the positive side. So should in that case s and st are going to be different from each other or they are going to be same? They are going to be same. So वजह क्या है कि थ्रू आउट पार्टिकल एक ही साइड पे जा रहे हैं, तो 6 सेकंड के बाद जो भी उसका s होगा वही उस पार्टिकल का st हो जाएगा, बिकॉज वो पार्टिकल लेफ्ट की तरफ तो आया ही नहीं है थ्रू आउट. बेशक वो t की वैल्यू 0 रखें, 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें, 4 अप टू 6, द वेलोसिटी इज पॉजिटिव. और पॉजिटिव वेलोसिटी का मतलब ये है कि इट इज ट्रैवलिंग टुवर्ड्स वन साइड ऑफ द एक्सिस. देयरफॉर फॉर दैट केस s and st are going to be exactly similar. Is this point clear to all of you? जी क्लियर है? ओके, बट जिंदगी आसान नहीं है. उसने थोड़ा सा मुश्किल बना दिया आपको कि उसने एक नेगेटिव साइन इंट्रोड्यूस कर दिया ओरिजिनल क्वेश्चन में, जिसकी वजह से आपके पास ये जो 27t है ये नेगेटिव साइन के साथ आ रहा है वेलोसिटी में. इट मींस के वेलोसिटी अगर मैं टाइम के हिसाब से देखूं तो हो सकता है कुछ t की वैल्यूज के ऊपर आपको वेलोसिटी पॉजिटिव मिले, कुछ t की वैल्यू पे आपको वेलोसिटी नेगेटिव मिले. पॉजिटिव वेलोसिटी का क्या मतलब है? द पार्टिकल इज ट्रैवलिंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव साइड. नेगेटिव वेलोसिटी की वैल्यू का मतलब क्या है कि द पार्टिकल इज ट्रैवलिंग टुवर्ड्स द नेगेटिव साइड. एंड देन फॉर दिस पार्टिकल विद अ नेगेटिव साइन इन द वेलोसिटी, you need to track the path of this particle in order to find out the distance traveled. So I hope in that case when we are incorporating this negative sign, उस केस में s और st एक दूसरे से
डिफरेंट होंगे। इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जी अब्दुल्ला कुछ पूछना चाह रहे हैं आप? सर नेगेटिव साइन उसमें मैटर नहीं करेगा, वो हमसे डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा हो। देखिए वो इस साइड में भी जा रहे हैं, उस साइड पे जा रहे हैं, डिस्टेंस तो नहीं कवर नहीं करेगा। डिस्टेंस ट्रेवल्ड होता क्या है? अगर आप पिछले सबसे पहला लेक्चर नहीं दूसरा लेक्चर थोड़ा सा रिफ्रेश करें, व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ पार्टिकल? नो, ये तो हम डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज बेसिकली द लेंथ ऑफ द पाथ जिस पे उस पार्टिकल ने ट्रेवल किया होगा। मसलन अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पास ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम था, ये पार्टिकल इनिशियली यहाँ गया, उसके बाद नेगेटिव हुई वेलोसिटी, ये पार्टिकल यहाँ आ गया, फिर ये ट्रेवल करता करता यहाँ तक आया। अब इसकी डिस्प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूं तो द डिस्प्लेसमेंट इज गोइंग टू बी, ओरिजिन पे इनिशियली लोकेटेड था, दिस इज गोइंग टू बी द डिस्प्लेसमेंट कि उसने कितना इनिशियल से फाइनल पोजीशन के दरमियान ट्रेवल किया। जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है इट इज गोइंग टू बी दिस लेंथ प्लस दिस लेंथ प्लस दिस लेंथ। तो मुझे पाथ को ट्रैक करना पड़ेगा कि कब कब ये पॉजिटिव ट्रेवल कर रहे हैं, कब कब ये नेगेटिव ट्रेवल कर रहे हैं, ताकि आखिर में उस पूरे पाथ को मैं सम करके टोटल डिस्टेंस ट्रेवल जो है वो निकालूं। यही वजह है कि जो हमने शुरू में बात की थी पिछले लेक्चर में, वेलोसिटी कैन बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव डिपेंडिंग कि वो किस तरफ जा रहे हैं, लेकिन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ पॉजिटिव क्वांटिटी बिकॉज इट एक्चुअली रिप्रेजेंट्स द लेंथ ऑफ द पाथ, और वो लेंथ हमेशा जो है वो एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है। ठीक है, अच्छा अब इस केस में जब हम ओरिजिनल क्वेश्चन पे वापस आते हैं और यहाँ नेगेटिव साइन है 4.5 टी स्क्वायर माइनस 27 टी प्लस 22.5, in that how we are going to judge कि ये कब कब राइट साइड पे गया है, ये कब कब लेफ्ट साइड पे गया है। एक जो हिट एंड ट्रायल वाला तरीका है वो तो ये है कि आप t की हर वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 पुट करके देख लें कि करस्पॉन्डिंग v की वैल्यू क्या निकलती है। लेकिन क्या वो तरीका सही है और क्या वो तरीका हर सूरत में आपको सही आंसर देगा? मे बी इस केस में शायद सही आंसर दे, लेकिन हो सकता है किसी केस में वो गलत आंसर भी दे। वजह क्या है कि यू नीड टू जज कि कितना एक्सट्रीम राइट तक उसने पोजीशन कोऑर्डिनेट एस ट्रेवल किया है, कितना एक्सट्रीम लेफ्ट तक उसने पोजीशन कोऑर्डिनेट एस ट्रेवल किया है, जब भी आप पाथ को जो है वो सम कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप 0 से लेकर 6 तक की वैल्यूज ले रहे हैं, हो सकता है ये एक्सट्रीम ट्रेवल कर रहा है 1.5 सेकंड पे, तो फिर आपको एक्सट्रीम वैल्यू चूंकि मिलेगी ही नहीं, तो आपका डिस्टेंस ट्रेवल गलत हो जाएगा। तो वो सही तरीका क्या हो सकता है? एनीवन वॉलंटियर हु इज प्रेजेंट हियर और या ऑनलाइन कोई जवाब देना चाहे? पहले चेक कर लेते हैं अगर कोई ऑनलाइन जवाब देना चाहे इस चीज का कि किस तरह हमें पता चलेगा किस एक्सट्रीम राइट तक और किस एक्सट्रीम लेफ्ट तक इस पार्टिकल ने ट्रेवल किया है। ओके, ऑनलाइन वाले कोई जवाब नहीं देना चाह रहे, तो दोज हु आर प्रेजेंट फिजिकली हियर जी। सर फंक्शन को ब्रेक कर लें कि उसकी वैल्यू कम चेंज हो, यानी कि 4.5 t स्क्वायर इज इक्वल टू 27 t और t की वैल्यू निकाल लें, ये ऊपर वाले क्या कर लें दोबारा बताएं? तो फंक्शन को ब्रेक कर लेना जहां पे वो उनकी वैल्यू इन्वर्ट यानी t स्क्वायर वाली वैल्यू कब तक पॉजिटिव है, दोनों इक्वल कहां पे आ जाते हैं? कोई आसान सा शॉर्ट तरीका जी। वो t की वैल्यू किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही होंगी? जहां पे वेलोसिटी 0 है, इन अदर वर्ड्स वेलोसिटी अपनी डायरेक्शन चेंज कर रही है। सो आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वेलोसिटी की 4.5 टी स्क्वायर माइनस 27 टी प्लस 22.5। अगर आप इसको 0 के बराबर पुट कर दें और वो दो रूट्स फाइंड करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वो दो रूट्स मिल जाएंगे जिसपे वेलोसिटी एक तरह से अपना साइन चेंज कर रही होगी, तो वो एक्सट्रीम वैल्यूज होंगी, उससे आप s की एक्सट्रीम वैल्यू जो है वो फाइंड कर सकते हैं। सो कमिंग टू द सोल्यूशन, हमने किया क्या कि हमने ये जो वेलोसिटी वाला फंक्शन था इसको 0 के बराबर पुट कर लिया और इससे मुझे जो रूट्स मिली दे कम्स आउट टू बी 1 and 5। इट मींस कि ये वो दो टाइम इंटरवल हैं जिस पे जाके वेलोसिटी साइन चेंज करी। इसलिए मैं कहता कि अगर इस केस में आप हिट एंड ट्रायल से चलते तो भी 1, 2, 3, 4, 5 ही ले रहे होते ना, तो आपका एक्सट्रीम वैल्यूज पता चल जानी थी। लेकिन मे बी कोई फंक्शन आपके पास ऐसा हो जिससे रूट्स आपके पास 1.5 और 2.7 आ जाती, उस केस में फिर आपका वो रैंडम वैल्यू लेने वाला तरीका गलत हो जाता। तो सही तरीका क्या है कि आपने उस वेलोसिटी फंक्शन को 0 के बराबर पुट कर लिया, जिससे आपको वो दो रूट्स मिल गए, वो दो वैल्यूज मिल गई जिसपे एक तरह वेलोसिटी अपना साइन चेंज कर रही है। तो ये दो रूट्स हैं 1 and 5। इसका मतलब क्या है कि हो सकता है 1 से पहले अगर वेलोसिटी पॉजिटिव है तो 1 के बाद नेगेटिव हो जाएगी, या हो सकता है 1 से पहले नेगेटिव है तो 1 के बाद वो पॉजिटिव हो जाएगी, जिससे मुझे वो एक्सट्रीम एस डिसाइड करना आसान हो जाएगा कि कहाँ एक्सट्रीम राइट तक ये जा रहा है
और कहाँ एक्सट्रीम लेफ्ट तक ये जा रहे हैं। अब थोड़ा सा इस तरफ गौर से देखें, मैंने किया क्या है कि उसके बाद मैंने इन तीनों चीज़ों को एक तरह से एक टेबल की फॉर्म में जो है वो लिख ली है कि t की वैल्यूज़ के ऊपर करस्पॉन्डिंग v और s की वैल्यू क्या क्या आती हैं। इसमें मैंने जिस बात का ख्याल रखना है, जो मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, वो ये है कि ये दो रूट्स जो आपकी आई हैं वो इस टेबल में लाजमी आनी चाहिए, ताकि आपको वो एक्सट्रीम s का जो है वो आइडिया हो जाए। यहाँ 1 और 5 आए हैं तो 1 और 5 लाजमी आप इस टेबल में शामिल करें। अगर यही चीज़ 1.5 और 2.7 आई होती तो मैं यहाँ इस टेबल में 1.5 और 2.7 का इंटरवल लाजमी शामिल करता, ताकि मुझे करस्पॉन्डिंग एस की एक्सट्रीम वैल्यूज जो है वो पता चल सकें। अब थोड़ा सा गौर से देखें, फ्रॉम 0 to 1 द वेलोसिटी is having a positive sign. It means that particle would be traveling towards the positive axis. From 1 till 5 the velocity is having a negative sign. It means that the particle would be traveling towards the negative side. From 5 to 6 the velocity is again positive. It means that the particle is again traveling towards the positive side. So पार्टिकल जहां से भी स्टार्ट होता है, पहले 0 से 1 तक वो पॉजिटिव ट्रेवल करता है, 1 से 5 तक वो नेगेटिव ट्रेवल कर रहे हैं, और 5 से 6 तक वो दोबारा पॉजिटिव ट्रेवल कर रहे हैं। करस्पॉन्डिंग एस का फंक्शन मेरे पास मौजूद है, तो मैंने एस की वो वैल्यूज जो है वो यहाँ टेबल फॉर्म में टी की यही वैल्यूज डाल के लिख ली हैं। अब थोड़ा सा इस फिगर को गौर से देखें जो नीचे की तरफ है। हम जरा पार्टिकल को ट्रैक करते हैं कि कहाँ कहाँ ट्रेवल कर रहे हैं, फिर हम डिस्टेंस ट्रेवल की बात करते हैं। Initially, when time is equal to 0, this particle is located at the origin. So मैंने इस पार्टिकल को origin के ऊपर बना लिया कि t0 के ऊपर this particle is located at the origin, but traveling with the initial velocity of 22.5 meters per second towards the right. So ये इसकी initial velocity आपको given है, initially rest में नहीं था, it was traveling with this velocity when it is at the origin. जब t इक्वल टू 1 हुआ, दिस पार्टिकल हैज ट्रेवल्ड टू अ पोजीशन कोऑर्डिनेट ऑफ 10.5 सेकेंड पॉजिटिव साइड पे। क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी पॉजिटिव थी, तो मैंने इस पार्टिकल को जो है वो पॉजिटिव साइड के ऊपर ट्रेवल करा दिया फ्रॉम 0 to 1 सेकेंड अप टिल द पोजीशन कोऑर्डिनेट ऑफ 10.5 मीटर्स या 10.5 फुट, जो भी इसके कोऑर्डिनेट्स हैं। फ्रॉम 1 to 5 दिस पार्टिकल the negative velocity. It means that it should be traveling towards the negative side. कितनी एक्सट्रीम लेफ्ट की तरफ जाएगा वो आपके पास ये वैल्यू है जो t equal to 5 पे, which is -37.5. So this is the extreme value जिस लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन तक ये पार्टिकल जो है वो ट्रेवल करेगा अप टिल t equal to 5, जिस पे जाके दोबारा वेलोसिटी 0 हो रही है। From 5 to 6 this particle is traveling with a positive velocity. पॉजिटिव वेलोसिटी का क्या मतलब है? वो अपनी करंट पोजीशन से पॉजिटिव साइड पे आ रहे हैं। कहां तक आ रहे हैं? अप टिल पोजीशन कोऑर्डिनेट ऑफ -27 सेकेंड। सो ये पार्टिकल यहां से लेके इस पॉइंट तक आया है जिस पे आपके पास पोजीशन कोऑर्डिनेट जो है वो -27 है। यानी वेलोसिटी तो पॉजिटिव ही थी, लेकिन पोजीशन कोऑर्डिनेट -27 तक उसने ट्रेवल किया है। दैट इज फ्रॉम द करंट पोजीशन विच इज दिस वन टू दिस पोजीशन इसने ट्रेवल कर लिए 1 सेकंड के दौरान पॉजिटिव वेलोसिटी के साथ, जब इसने -27 पोजीशन कोऑर्डिनेट तक ट्रेवल किए। सो द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दिस पार्टिकल इज गोइंग टू बी द सम ऑफ दिस लेंथ प्लस दिस लेंथ प्लस दिस लेंथ। सो ये तीनों लेंथ कितनी बनती हैं अगर हम इनको एक एक करके देखें? दीज लेंथ्स आर गोइंग टू बी दिस लेंथ विच इज 10.5 plus this length which is 10.5 plus this length which is 37.5 plus this length again which is 10.5. So the overall distance traveled by this particle is going to be the sum of these four lengths, which comes out to be 69 feet. So अगर हम displacement और distance traveled को distinguish करें, so the displacement of this particle from its initial position to the final position is -27. However, the distance traveled is going to be 69 foot. जी, second student. यार quadratic equation है, तो तीन रूट्स आ सकते हैं। कौन सा? देखें, उस तरीके से भी यही आ रहा था, लेकिन
इट ऑल डिपेंड्स अपॉन दैट पर्टिकुलर फंक्शन। मे बी ये भी हो सकता है कि कभी आपको रूट्स मिले जो आपको उस टाइम इंटरवल में आते ही ना हो, एक आता हो एक ना आता हो, फिर आप क्या करेंगे? फिर आप सिर्फ एक दफा उसका साइन चेंज करवाएंगे, यानी एक दफा वो राइट पे जाके, यानी राइट पे जाते जाते एक ही दफा वो लेफ्ट पे आएगा, या लेफ्ट पे जाते जाते एक ही दफा वो राइट पे आएगा। ठीक है, माइनस साइन 22.5 के साथ होता फिर भी यही होता। क्या चीज? अगर माइनस साइन 22.5 के साथ होता मसलन, अच्छा, यानी इनिशियली अब माइनस साइन 22.5 के साथ होने का मतलब क्या है? बाकी दोनों प्लस होते हैं, माइनस वो होता है। देखिए वो तो अगेन सिचुएशन, रूट फिर भी आप इसकी सूरत फॉलो, वही ना कि उसकी वो डायरेक्शन चेंज हो जाती है। हाँ बिल्कुल ऐसी बात है, यानी आपके रूट्स उस सूरत में भी दो ही आने थे, उस सूरत में भी दो ही आने थे, लेकिन उस टी की वैल्यू फिर क्या आती वो डिपेंड करता है। जी देखिए, नहीं ये किसने कहा? देखो वेलोसिटी जीरो आप जो कह रहे हैं वो क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आपके पास जो वेलोसिटी फंक्शन है दैट इज क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक फंक्शन का मतलब क्या है कि सिर्फ दो रूट्स उसके आ सकते हैं। तो बेशक आप इसमें 10 सेकंड का भी टाइम इंटरवल ले रहे हैं, 10 सेकंड का अगर आप लेते हैं तो यहां जो उसने डायरेक्शन चेंज कर ली है, अब ये थ्रू आउट 5 से लेके 10 सेकंड तक पॉजिटिव साइड पे ही ट्रेवल करेगा, ये दोबारा मजीद चेंज नहीं होगी, क्योंकि आपके रूट्स 1 और 5 आए हैं, 1 और 5 आगे 5 चेंज कर दिया, अब नहीं होगा, 10 जो है ऊपर ही जा रहा होगा। हाँ, लेकिन उस सूरत में फिर आपका डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव साइड पे आ जाएगी मोस्ट लाइकली, और डिस्टेंस एस की वैल्यू व्हेन टी इक्वल टू 10। अब्दुल्ला कैलकुलेटर आपके पास मौजूद है? सर आवाज नहीं सही आ रही। चलिए ये लेक्चर रिकॉर्ड भी हो रहे हो, होपफुली आप तक ये जो आखिरी में 10.5 आप कह रहे हैं ना, 37.5 प्लस 3000 कर देंगे तो दैट डिस्टेंस ट्रेवल वुड कम्स आउट टू बी अ बिगर क्वांटिटी। साइन दोबारा चेंज नहीं होगा, थ्रू आउट 5 to 10 सेकंड द पार्टिकल वुड बी ट्रेवलिंग टुवर्ड द पॉजिटिव साइड। Is it clear to all of you who are present here? Any query regarding any of these terms which have used here? चलें अब हम आ जाते हैं ऑनलाइन स्टूडेंट्स की तरफ। जी जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं, इफ यू हैव एनी क्यूरीज रिगार्डिंग टुडेज लेक्चर, प्लीज अपनी क्यूरीज को शेयर करें। अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं, अदर वी आर गोइंग टू स्टॉप एट दिस पॉइंट, और फिर हम जो है वो कल की क्लास स्टार्ट करके any student who want to ask any question? If not, then we are going to stop the recording here. लेकिन recording stop करने से पहले let me download your attendance sheet who are attending it online. So attendance sheet आपकी आ गई है। अच्छा सर आपकी आवाज अभी भी क्लियर नहीं आ रही है सर, फिर हमें पता नहीं चलेगा कि अटेंडेंस हुई है या नहीं हुई। अटेंडेंस हो गई है? ओके सर। एक्सक्यूज मी सर, इधर पता नहीं आपके जी, यहाँ बताएं। कमजोर है कि हमारे यहाँ नेट की सिग्नल नहीं आ रही, लेकिन लेक्चर सही तरह नहीं लिया, तो काइंडली आप कोई इशू नहीं है, लेक्चर मैंने रिकॉर्ड कर दिए, मैं इस रिकॉर्डेड लेक्चर को अपलोड कर दूंगा MS टीम में। मैंने लास्ट वीक के लेक्चर भी जो हुए थे वो सारे के सारे रिकॉर्ड्स, नॉट ऑन प्लीज, जो लास्ट वीक लेक्चर हुए थे वो तमाम के तमाम लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग्स मैंने आपकी इसी MS टीम्स की फाइल्स में जो है वो अपलोड कर दी हैं।
इसके अलावा जो पावर पॉइंट की स्लाइड्स थी लास्ट की वो भी मैंने अपलोड कर दी है, तो इसी तरह आज वाले लेक्चर भी मैं अपलोड कर दूंगा। और जहाँ तक ताल्लुक ये सिग्नल्स का है तो प्रोबेबली ये सेमेस्टर हमें थोड़ा सा इसके साथ ही गुजारना है, इसीलिए रिकॉर्डिंग हर लेक्चर की करके आपके पास अपलोड मैं कर दिया करूंगा, ताकि सर टीम्स की फाइल सेक्शन में अपलोड कर दिया करें प्लीज। कॉपी होती सेक्शन में अपलोड किए जिस तरह से पहले स्टैटिक्स में हमने अपलोड किए थे। ठीक है, ओके, सो लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग हियर। और उसके बाद जो ऑनलाइन